Hi, Mr. Roy. Good afternoon. Good afternoon to everyone. This is Alok Patnia, Managing Partner at Tax Mantra Global, and I welcome you all for today's very important webinar, which we are doing on e-assessments. You know, e-assessment has been a big change by the government. I would say one of the largest change which has been brought in by Modi government. And a little bit of background about e-assessment, but prior to that, I would like to thank Mr. R.K. Patnia for joining us, for accepting our uh, request to join us and enlighten us on the e-assessment procedures. He has got experience of more than close to 40 years now in handling assessment, taxation, survey cases, tribunals, appeals. So we have got a very good experience uh, faculty today who would be helping us to understand the nuances of e-assessments. So let me give you a brief background in terms of the e-assessment. So it was on 5th of July 2019, and also that in the budget speech, the government said, and subsequently on 7th of October 2019, that the government will move ahead and launch an e-assessment system, which was launched. And on 13th of August 2020, the Prime Minister actually launched transparent taxation, honoring the honest platform. And this was done to honor the honest taxpayers and uh, motivate them so that they follow the laws properly, and the system becomes very transparent and system becomes proactive. I think the outcome of the scheme is that the taxpayer will no longer be attached to a particular territory or jurisdiction or office for assessment. Now that was a big thing, because the officer would know that this SSE will be there next year also, and I have the habit of opening his cases every year. And the system will take up, it will be a faceless, there will be a random selection of cases and complete electronic assessment scheme. The national e-assessment, which is also called NEAC, has been empowered as the main gateway for this. On then, I would say simply to put in, e-assessment will remove arbitrary power in the hands of taxpayer on the officers, wherein they would not just do assessments on their whims and their thought process. And the latest technology, including artificial intelligence and machine learning, will only help and reduce any scope of discretion. So the discretionary power of officers is going down, and transparency and same rule for all would come up. I think there are many other nuances which we will discuss today. And with this, I welcome Mr. R.K. Patnia. But before that, I welcome everyone. I see a lot of people have joined in today, and we are also live on Facebook. And please post your query. If you have anything in the last 15 minutes, we will take your queries. So please post in your Q&A or in the message box, and I will ensure that we address all those queries. Also, we are starting this webinar series, and we will have more webinar on e-assessments and taxation and other aspects, so that we keep our taxpayers and our society updated with what is new in the tax laws. With this, I welcome Mr. R.K. Patnia to give a to introduce himself, talk about little bit, and then we will start with the formal webinar. Thank you, Alok. Host of this program, chartered accountants, advocates, taxpayers, and my professional colleagues. Friends, it gives me immense pleasure to me to welcome you all in this program, in which we will discuss about the provisions of faceless assessment, which is codified under section 144B of the Income Tax Act. Friends, on this occasion, I would also like to extend my thanks to entire Tax Mantra team who have given me this opportunity to share my views on this important topic before learned persons present here. Friends, we all know पहले क्या होता था. Previously, taxpayers has to visit the department's offices to submit his responses in connection with his scrutiny assessments.
he has to wait about his turn. तो उनके टाइम काफी उसमें लगती थी. Second, 3 factors were also important at that time. What factors? Those factors are the behavior of the assessee, body language of the assessee, and face value of the authorized representative. अगर मेरिट है मेरे केस में, लेकिन अगर मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है या मेरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एक जूनियर एडवोकेट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हो सकता है मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था एक क्वालिटी असेसमेंट ऑर्डर लेने के लिए. परंतु आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस फेसलेस स्कीम, these problems will go. Now, taxpayer is not required to visit income tax offices, and only merit will come into the picture. Now, only the chartered accountants or advocates who are having good skills of representation, good skills of writing, good understanding of law, good understanding of facts, accounting principles, can only success. सिर्फ उन्हीं को सफलता मिलेगी. अब वो सीनियर है, जूनियर है, डज नॉट मैटर. अब ये फेसलेस स्कीम जो लेके आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है? गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी असेसमेंट ऑर्डर. पहले क्या होता था, हाई पिच असेसमेंट हो जाते थे विदाउट एनी क्वालिटी ऑर्डर, और बाद में आईटीएटी और सीआईटी अपील के स्टेज पर वो सारे एडिशंस डिलीट होते थे. डेट क्रिएट्स ए बैड परसेप्शन फॉर द डिपार्टमेंट, बैड इमेज फॉर द डिपार्टमेंट, बिकॉज कोई चेक बैलेंस नहीं था असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर करते समय. बट नाउ देयर आर सो मेनी चेक बैलेंसेस हैव बीन बिल्ट अप, एंड वी होप दैट we will get quality orders on merit, and that this scheme is very helpful for the honest taxpayers. With these words, I conclude my opening remarks in this program, and request the host of the program to continue the proceedings. Thank you, sir. That was very enlightening, and you rightly said that ये जो बेनिफिट है ये दोनों को है, टैक्स पेयर्स को भी है, डिपार्टमेंट को भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर वाज नो चेक्स एंड बैलेंसेस एट द इनिशियल स्टेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर मेनी टाइम देयर वर रॉन्ग ऑर्डर्स व्हिच हैज बीन पास्ड व्हिच गॉट डिलीटेड एट अपील लेवल और एट अ ट्राइब्यूनल लेवल. तो कहीं ना कहीं अपील लेवल और ट्राइब्यूनल लेवल पे भी अब जो ऑर्डर जो जिसमें मेरिट नहीं है वो अब पहुंचना बंद होंगे. तो 2-3 साल 4 साल में हम देखेंगे कि वहां पे भी लोड कम हो रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट ब्रॉट इन बाय sir. And I agree that this is beneficial for both the parties, departments also and taxpayers also. And one more important thing which sir brought in today is abhi tak kya hota tha ki if someone is very senior and if someone has that perception in the department that this person is very senior, this person has got standing in the society, this person knows lot of, and this person has got decades of experience. तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर के पास भी एक रहता था कि आई हैव टू गिव अ बेनिफिशियल ऑर्डर, और बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर असेसिंग ऑफिसर टू गेट इनटू दैट स्ट्रक्चर. अभी क्या हो रहा है, और जो यंग टैक्स पेयर्स है, यंग प्रैक्टिशनर्स है या यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था कि कैसे वो अपने आप को स्टैब्लिश करे असेसमेंट प्रैक्टिस में. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which is brought in by sir, because now the only thing which will work is your quality of your drafting and quality of your submission. That's the only equalizer. Otherwise जो चीज इसके अलावा है वो अब secondary हो गई है. With this I start my FAQs, and people are still joining. We have close to 75 people now. Most of them are entrepreneurs, most of them are young people, and I thank everyone for joining us. And we are also live on Facebook. I'm getting a lot of queries on Facebook also. तो अभी ये तो हमें पता चल गया कि फेसलेस असेसमेंट होता क्या है, बट आप सर ये बताओ कि कौन कौन से
चीजों को फेसलेस के अंदर हम ले आए हैं अभी, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट इन द फेसलेस, और अगर आप 2 मिनट में एक ओवरऑल एक समराइज करें कि फेसलेस में होगा क्या, तब हम स्पेसिफिक क्वेरी में जाएंगे। ओके ओके, फेसलेस में अभी क्या है? If we go through the provisions of section 144B, capital V, we find that at present 143 assessment, 144 assessments, and 148 assessments that will come under the purview of faceless system. Only the search cases and survey cases that are outside from the purview of faceless systems. And faceless, from the word it appears there is no face, neither the taxpayer nor the tax officer will see each other's face during the course of assessment proceedings. And the objectives, so already I have discussed the objectives, because government want to ensure that greater transparency, greater accountability, and optimize utilization of the manpower of the department. अभी क्या हो रहा था कि कुछ ऑफिसर्स के पास केस कम थे, कोई छोटी जगह में ऑफिसर है, छोटे शहर में ऑफिसर है, उनके पास केस कम है, बड़े सिटी शहर में ज्यादा केस होते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अब तो ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम के द्वारा केस का एलोकेशन होगा। सपोज 1 लाख केसेज हैं और हमारे पास 100 ऑफिसर्स हैं, तो हम 1000 केस पर ऑफिसर को, पर एयू को, असेसमेंट यूनिट को एलोकेट करेंगे। लेकिन वो भी एनएफएससी उसको जो एलोकेट करेगा वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही करेगा। एनएफएससी को भी नहीं मालूम है कि किस केस, कौन केस कहाँ जाएगा। ये सिस्टम इतना फूल प्रूफ बनाया है क्योंकि अभी हम लोग सितंबर से इस पर काम कर रहे हैं। सितंबर, और वैसे तो अगस्त से ही हम लोग ई असेसमेंट से काम कर रहे थे, लेकिन सितंबर में इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 61 जो लाया उसमें फेसलेस असेसमेंट प्रोसीड्योर ले आए। तो उससे हम लोग देख रहे हैं कि ये इट इज ए फुल प्रूफ सिस्टम। टीम के बीच में भी जो इंटर कम्युनिकेशन होगा, सपोज एयू असेसमेंट यूनिट या टीयू टेक्निकल यूनिट या फिर वेरिफिकेशन यूनिट, इनके बीच में जो आपस का कम्युनिकेशन है वो एनएफएससी के थ्रू ही होगा। आपस में कोई भी इंटरफेस नहीं है। द इंटरफेस कंप्लीटली कुछ भी नहीं रहेगा। जो सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो एनएफसी के थ्रू रहेंगे। एसएससी को सिर्फ एनएफसी के थ्रू ही अपना कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। नोटिस जो आएंगे एसएससी को वो एनएफएससी के थ्रू ही आएंगे। अगर एयू को, असेसमेंट यूनिट को अगर कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए एसएससी से, या उनको हेल्प चाहिए टेक्निकल टीम से, या उनको हेल्प चाहिए वेरिफिकेशन यूनिट से, तो वो एनएफसी को लिखेंगे और एनएफसी फिर एलोकेटेड करके सॉफ्टवेयर के थ्रू वो एलोकेट करेंगे। हो सकता है कि किसी एसएससी का असेसिंग यूनिट कोलकाता में हो, उसका वेरिफिकेशन यूनिट चेन्नई में हो, उसकी टेक्निकल यूनिट गुवाहाटी में हो। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू होगा और ये कंप्लीटली टेक्निकल ड्राइव सिस्टम पर चलेगा। Thank you, sir, for summarizing this. So now we move ahead. You have already suggested what are the advantages to both the taxpayers and also to department. एक point कहीं ना कहीं जो मैं add करना चाहता हूँ, जो कहीं miss हो गया हमसे advantages में, वो ये था कि अभी क्या होता था, and I have also faced this many times when I was working with EY KPMG and also in my role as in Tax Mantra, इसकी हम इनिशियल लेवल पे 143(3) पे ऑर्डर लिखवा लेते हैं और हम लोग उस समय जो सबमिशन देते थे वो सबमिशन का कॉपी लेना या ऑर्डर शीट लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी और उसमें महीनों लग जाते थे। नाउ विद दिस क्लाउड सिस्टम एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज इन द क्लाउड। सो वो डिपेंडेंसी ऑफिसर पे रहना और क्या चीज हमने एक्चुअल में व्हाट वी हैव सबमिटेड एंड व्हाट वी हैव नॉट सबमिटेड, वो चैलेंज खत्म हो गया। तो वहां पे भी एक बहुत मैसिव ट्रांसपेरेंसी आ गई है। सर, विद दिस I want to start and understand what are the different authorities in this scheme, sir. If you can explain कि क्या-क्या authorities है e-assessment पूरे के पूरे system में? Okay. Actually, जो centralized coordinator रहेंगे इसमें, वो रहेंगे National Faceless Assessment Center, NFSC. इसको हम लोग शॉर्ट में NFC कह सकते हैं। सेकेंड जो रहेंगे वो रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर।
रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एक्चुअली वो केडर कंट्रोलिंग के रूप में काम करेंगे। जैसे उनके हेड प्रिंसिपल चीफ CCIT रहेंगे और या प्रिंसिपल DG रहेंगे, और उसके अंडर में यूनिट रहेंगी आपको AU असेसमेंट यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट TU, VU वेरिफिकेशन यूनिट एंड देन रिव्यू यूनिट। ये 4 यूनिट उनके अंडर में रहेंगी। यानी ये जो रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जो रहेंगे उनके अंडर में ये 4 यूनिट रहेंगी। अब ये वर्क कैसे करेगा या इनके यूनिट का क्या फंक्शंस है, इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले इनका इंडिविजुअल फंक्शंस क्या है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इनका ये सिस्टम चलेगा कैसे, किस तरह से इनका फ्लो चार्ट चलेगा। तो पहले हम लोग इनके फंक्शंस के बाद में बात करते हैं कि ये जो नेशनल NFSC नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, ये वर्क करेगा सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटर के रूप में। जब अभी इसको मैं समझता हूं कि सबसे पहले SSC अपनी रिटर्न फाइल किया। अब रिटर्न फाइल किया तो उनको चाहे तो CPC से 143(1) का असेसमेंट हो गया, और या फिर अगर उनके केस को स्क्रूटनी में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन फिर यहाँ ऑटोमेटेड सिलेक्शन सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही, जो अभी तक हो रहा था 3%, 2%, जो भी डिपार्टमेंट तय करेगा कि भाई 1% SSC का या 2% SSC का हम असेसमेंट को स्क्रूटनी करेंगे, या फिर इंफॉर्मेशन बेस्ड। अगर डिपार्टमेंट के पास कुछ SSC की इंफॉर्मेशन है जिनको ये लगता है कि उन्होंने जो रिटर्न फाइल की है और डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उनकी इनकम ज्यादा है, तो वो उन केसों को भी स्क्रूटनी में लेंगे। जब स्क्रूटनी में आएंगे तो स्क्रूटनी की लिस्ट आ जाएगी NFSC के पास। NFSC सबसे पहले SSC को एक नोटिस देगी, दैट वाज ए बेसिक नोटिस। वो एक स्टीरियोटाइप नोटिस है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि सभी SSC में आप देखेंगे कि एक स्टीरियोटाइप आपको नोटिस मिलेगी NFSC से। उसका समय रहेगा 15 दिन। यू हैव टू सबमिट योर रिस्पॉन्स विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। अभी इश्यू ऑफ नोटिस और रिसिप्ट ऑफ नोटिस में कोई फर्क इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि जिस दिन नोटिस इश्यू हो रहा है उसी दिन अपलोड हो जा रहा है पोर्टल पर। रजिस्टर्ड पोर्टल जो SSC का है या रजिस्टर्ड ईमेल है उसको उसी दिन ही वो भेज दे रहे हैं, तो वो रिसिप्ट और इश्यू दोनों का डेट एक हो जा रहा है। अब ये नोटिस जब आ गई SSC के पास तो उनको विद इन 15 days अपना एक रेस्पॉन्स देना है, यानी जो बेसिक या प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो इंफॉर्मेशन आपको नेशनल फेसलेस सेंटर को, लेकिन आपको अपने रजिस्टर्ड पोर्टल पर अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने के बाद ये NFSC के पास ये आपका रिस्पॉन्स पहुंच गया। वो रिस्पॉन्स जो है वो अब ऑटोमेटेड सिलेक्शन सिस्टम के द्वारा वो AU को सिलेक्ट करेंगे कि आपका केस किस AU को दिया जाए। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि किस असेसमेंट यूनिट के पास आपका केस जाएगा। वो केस वहां पर वो फॉरवर्ड कर देंगे। अब असेसमेंट यूनिट का क्या फंक्शन है? असेसमेंट यूनिट सबसे पहले इश्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, आपके प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स देख करके, आपके प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिटेड अकाउंट्स देख करके वो तय करेंगे कि इस केस में हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एविडेंस चाहिए, और वो एक क्वेरी लेटर बना करके NFSC को भेज देंगे। साथ में ही अगर असेसिंग यूनिट को अगर मदद की जरूरत है टेक्निकल यूनिट की, या वो समझते हैं कि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करना है, या किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, या SSC का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, या कोई क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, तो वो भी रिक्वेस्ट करेंगे NFSC को। NFSC क्या करेंगे अब कि वो जो इंफॉर्मेशन AU से आया, असेसमेंट यूनिट से आया, जो SSC से रिलेटेड है, वो SSC को भेज देंगे फर्दर रिक्वायरमेंट, फर्दर क्वेरी लेटर उनको भेजेंगे। साथ ही वो फिर ऑटोमेटेड सिलेक्शन सिस्टम के द्वारा TU को यानी टेक्निकल यूनिट और VU यानी वेरिफिकेशन यूनिट का चुनाव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और वो सिस्टम ड्राइव सॉफ्टवेयर से वो उनका सिलेक्ट करके वो उस वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट को ये रिक्वेस्ट जो है वो भेज देंगे। SSC अपना रिप्लाई फिर से NFSC को भेजेंगे, तथा वेरिफिकेशन यूनिट अपनी रिपोर्ट NFSC को भेजेंगे। सिमिलरली
जो टेक्निकल यूनिट है वो भी अपनी रिपोर्ट जो जिस पॉइंट्स पर हेल्प मांगा है, जिस पॉइंट पर असिस्टेंस मांगा है एयू, वो रिपोर्ट एनएफसी को भेज देंगे। एनएफसी वो दोनों रिपोर्ट को, यानी टेक्निकल यूनिट की रिपोर्ट को और वेरिफिकेशन यूनिट की रिपोर्ट को वो भेज देंगे फिर से असेसमेंट यूनिट को, और एसएससी से जो रिप्लाई आएगी उसको भी भेज देंगे असेसमेंट यूनिट को। अब असेसमेंट यूनिट एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे। अगर उनको लगता है कि एसएससी की रिप्लाई आने के बाद में फर्दर कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फर्दर उनको कुछ एविडेंस चाहिए, फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनएफएससी को, और वो फर्दर एसएससी फिर अपना अपलोड करेगा वो क्वेरी लेटर को। लेकिन ये सारी प्रोसेस होने के बाद में ये जो एयू है, असेसमेंट यूनिट है, एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। वो ही विल ड्राफ्ट ए प्रपोज असेसमेंट ऑर्डर, वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एयू बनाएंगे। उसमें वो सारे मटेरियल्स जो उनके रिकॉर्ड में है, जो उनको वेरिफिकेशन यूनिट से मिला, जो उनको टेक्निकल यूनिट से मिला, जो उनको एसएससी से मिला, जो अदर पर्सन से मिला, अदर पर्सन का भी रिक्वेस्ट वो एनएफसी को कर सकते हैं कि ये एविडेंस है, ये फलाने पर्सन के पास है, उनको उनसे ये इंफॉर्मेशन मंगा कर दी। उन सारे मटेरियल्स को, इंपोर्टेंट मटेरियल्स को कंसीडर कर करके वो अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे और बना करके उसको एनएफएससी को भेज देंगे। अब एनएफएससी क्या करेंगे? अगर एनएफएससी सबसे पहले उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का फिर से एग्जामिनेशन करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर टूल्स के द्वारा। एनएफएससी के पास सॉफ्टवेयर टूल्स है, उससे वो जांचेंगे कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर क्या मान लिया जाए या ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को हमको रिव्यू यूनिट को भेजना है। अगर उनको लगता है या उनके टूल्स से, उनके एग्जामिनेशन से उनको ही फील्स दैट दिस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिक्वायर्ड द असिस्टेंस ऑफ रिव्यू यूनिट, तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर को रिव्यू यूनिट को भेज देंगे। लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें कोई एडिशन नहीं है, यानी रिटर्न इनकम जो एसएससी का है वही एक्सेप्ट किया गया है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर, डिमांड नोटिस, पेनल्टी नोटिस, ये सारे एसएससी के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि एसएससी को वो असेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगी। बट अगर वो असेसमेंट ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू एसएससी है, यानी उसमें एडिशंस किए गए हैं, उनकी टैक्स लायबिलिटी रिटर्न इनकम से बढ़ा दी गई है, तो ये एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको एक शोकॉज देंगे और उनका कमेंट्स मांगेंगे इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पर। एसएससी जो टाइम उनके नोटिस में रहेगा, उस टाइम के विद इन दैट टाइम दे हैव टू फाइल दैट देयर कमेंट्स ऑन द असेसमेंट ऑर्डर, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर विद द कमेंट्स ऑफ एसएससी वो चला जाएगा एयू के पास। एयू फिर से उसको एग्जामिन करेंगे कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर विद द ऑब्जेक्शंस ऑफ जो एसएससी भेजा है उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए फिर से ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देंगे एनएफएससी के पास। बट जो ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफसी ने ही फील किया कि इसको रिव्यू की जरूरत है, वो रिव्यू के लिए जो चला गया ड्राफ्ट ऑर्डर, वो फिर वो रिव्यू यूनिट उसको देखेंगे कि ये असेसमेंट ऑर्डर में, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में और रेलिवेंट फैक्ट्स लिए गए कि नहीं, और रेलिवेंट लॉ जो कोर्ट केसेस थे वो लिए गए कि नहीं, और रेलिवेंट एविडेंस से लिए गए कि नहीं, जो एडिशन हुआ है उसके रीजंस स्पीकिंग ऑर्डर में डिस्कस किया गया कि नहीं, ये सारी चीज को एग्जामिन कर करके रिव्यू यूनिट दो काम कर सकती है। नंबर वन, चाहे तो वो कॉन्कर करेगी एयू के ड्राफ्ट असेसमेंट को कि ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर करेक्ट है और इसको वो फिर से एनएफएससी को भेज देंगे, या फिर विद सजेशंस ऑफ मॉडिफिकेशंस ये भेजेंगे एनएफएससी को कि इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और वो अपनी रिपोर्ट एनएफएससी को भेज देंगे। अगर एनएफएससी के पास जब ये ड्राफ्ट ऑर्डर विद सजेशंस ऑफ रिव्यू यूनिट आएगा, तो फिर से वो एक ऑटोमेटेड सिलेक्शन सिस्टम के द्वारा नई एयू यानी नई असेसमेंट यूनिट को वो ड्राफ्ट ऑर्डर साथ में सजेशंस ऑफ रिव्यू यूनिट भेजेंगे। इसका माने ये हुआ कि जो ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट है उससे इससे अब कोई रिलेशन नहीं है, वो उनका काम खत्म हो गया। अब ये चला गया नए असेसमेंट यूनिट के पास।
नया असेसमेंट यूनिट फिर से फ्रेश माइंड से विदाउट एनी रिजर्वेशन वो जो सजेशंस आएंगे रिव्यू यूनिट को उसको वो कंसीडर करेंगे और कंसीडर करके ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को रिवाइज करेंगे और रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे ये एनएफएससी के पास। अब एनएफएससी इस ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आया इसमें फिर दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। एक ऑर्डर ऐसा हो सकता है जो कि एसएससी की रिटर्न इनकम एक्सेप्ट हो रही है, तो उस केस में वो उनको एसएससी को सर्व कर देंगे असेसमेंट ऑर्डर विद डिमांड नोटिस विद पेनल्टी नोटिस। और अगर वहां एडिशंस है यानी प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी, अगर वो असेसमेंट ऑर्डर है उसमें एडिशंस किए गए हैं तो फिर से वो एक कमेंट मांगेंगे उस फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को भेज करके एसएससी से। एसएससी अगेन हैज टू सबमिट हिज कमेंट्स हिज ऑब्जेक्शंस on date final draft assessment order, and वो final draft assessment order along with the comments of the SAC फिर वो असेसमेंट यूनिट जो नई असेसमेंट यूनिट है उनके पास जाएगा और वो वहां से उसको कंसीडर करके फिर से वो ड्राफ्ट ऑर्डर भेज देंगे एनएफएससी के पास और एनएफसी उसको फिर सर्व कर देंगे एसएससी को। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से चलेगा। तो ये सारे सिस्टम को देखने से ये पता चलता है कि डायरेक्ट कोई भी फिजिकल इनका कांटेक्ट नहीं रहेगा, न एसएससी का, न असेसिंग यूनिट का, न असेसिंग यूनिट का, न वीयू से यानी वेरिफिकेशन यूनिट से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है। असेसमेंट यूनिट का भी टेक्निकल यूनिट से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट जो भी होगा वो सेंट्रल कम्युनिकेशन सेंटर यानी हमारे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से ही एनएफएससी से ही कम्युनिकेशन होगा। और इसीलिए ये फुल प्रूफ सिस्टम है। ऐसा it appears that it will definitely work. It will definitely beneficial for the honest taxpayers. It will definitely give the quality assessment orders. It will definitely beneficial to the taxpayers at all. I think that's a very comprehensive explanation by sir in terms of how the system will work. और क्या है कि एक एसएससी को देयर वर कपल ऑफ वरीज इन द माइंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स कि और एक कंफर्ट लेवल रहता है कि विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। So if so that has already been cleared by sir that there will be a so cause which will be given by the department before any additions to be made or before imposing any penalty or something, and after you reply to that so cause then only the final assessment will happen. And so एक तो क्या है कि आपको सोकोज मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपको अनाप शनाप लायबिलिटी और ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, वो चीज नहीं है। सेकंड चीज जो है वो ये है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। एंड बहुत बार क्या होता था विच आई अंडरस्टैंड कि मेनी टाइम्स योर लोकल ऑफिसर may not appreciate the facts of the case. For example, there may be a tech company from a small city. Now with internet you can have tech companies and interesting new technology companies from any place in India. Places like Indore, Raipur, Bhilai, those small cities are also having tech companies. Now the local officer might not have faced that kind of facts of the case of a tech company. So अभी अगर centralized system से assessment होता है and there are, so it will give more opportunity for the taxpayer also, because now someone who is sitting in Mumbai or Bangalore or Chennai was faced this kind of assessment, these kind of companies will able to do it. So I think quality assessment तो होगा, even I feel that, and the SSC will get the opportunity before any addition. And the best part is that everything goes into record. सर मैं एक चीज यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग एक एसएससी के लिए इतना कुछ किस सिस्टम में क्या जा रहा है वो तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट एक एसएससी को क्या 3 या 4 चीज है जो उसको केयरफुल रहना चाहिए वाइल ऑनलाइन असेसमेंट, ई असेसमेंट में, कि ये बहुत जरूरी है, ये चीज में एकदम केयरफुल होना चाहिए। जो पहले हो सकता था कि जब फेस टू फेस असेसमेंट होता था तो मेनी थिंग्स कुड बी मैनेज्ड। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच द एसएससी शुड बी केयरफुल ऑफ? ओके, ये सबसे पहले एसएससी को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल फर्स्ट टू
रजिस्टर्ड हिज ई मोबाइल ऑन हिज ई पोर्टल, वो उनको अपना मोबाइल नंबर को भी रजिस्टर्ड कराना बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। कारण क्या है, नोटिसेज जो आएंगे वो आएंगे ई पोर्टल के ऊपर, रजिस्टर्ड ई पोर्टल जो एसएससी का है उस पर आएगी, साथ ही वो रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा और वो एक मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी। अगर वहां पर वो अपडेटेड नहीं है ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर भी अपडेटेड नहीं है, तो ये चांसेज है कि एसएससी को पता ही नहीं चले कि क्या नोटिसेज आ रही है और वो एक्सपार्टी असेसमेंट हो जाए। क्योंकि एक इश्यू मेरा वहां छूट गया जब मैं पहले आपको बता रहा था कि सपोज एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की 142(1) में, या एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं की 148 के रिस्पॉन्स में, या एसएससी ने कंप्लायंस नहीं किया नोटिसेज का, तो क्या होगा? तो उस समय में एनएफएफसी एक नोटिस देगा एसएससी को कि साहब आपका असेसमेंट, जैसे पहले भी देते थे एसएससी ऑफिसर, पहले भी एक शो कॉज देते थे जब नॉन कॉम्प्लायंसेज होते थे कि साहब आपका असेसमेंट हम एक्सपार्टी क्यों नहीं कर दें, अंडर सेक्शन 144 क्यों नहीं कर दें। तो ये 144 में एक्सपार्टी असेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारा ईमेल वहां रजिस्टर्ड नहीं है, हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। कारण क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, फिजिकल कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले ई मोबाइल, आपको मोबाइल और ईमेल जो है वो आपको वहां रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। साथ में जो नोटिसेज आती हैं उनका आप विद इन टाइम वो तुरंत जवाब दे। कारण क्या है कि पहले क्या होता है कि अभी टाइम पिटिशन आपको जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही आपको टाइम मिलेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल कोर्स में टाइम पिटिशन हो सकता है कि हमको न मिले। जैसे 144 भी जब मैं पढ़ रहा था तो देखा कि उसमें तो टाइम पिटिशन का कहीं कोई प्रोविजन नहीं डाला। उन्होंने लिखा है कि एसएससी हैज टू फाइल his response within 15 days from the date of receiving of notice। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में ये जो टाइम पिटिशन का जो चलन, जो हम लोग जो पहले के सिस्टम में टाइम पिटिशन काफी हम लोग को रिलैक्स वे में, बहुत ही लीनियन वे में हमको टाइम मिल जाता था असेसिंग ऑफिसर से, लेकिन वो शायद अब संभव नहीं होगा। वो अब हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में विद एविडेंस जब हम फाइल करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी एसएससी के यहाँ कोई डेथ ही हो गई या कोई एसएससी हॉस्पिटलाइज ही हो गया, तो हो सकता है ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में वो टाइम मिल जावे, लेकिन नॉर्मल कोर्स में टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कंप्लायंस विद इन टाइम ही करना है, ये हमको एसएससी को ध्यान में रखना है। ओके, I think एक चीज और सर which I think that will be very important for SSC is the quality of submission। I think वो बहुत critical हो गया है अब इस लेवल पे, because which I feel because earlier क्या होता था कि बहुत रिलेशनशिप पे बहुत बार असेसमेंट हो जाते थे, तो क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, व्हाट फैक्ट्स यू आर पुटिंग, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन द असेसमेंट, वो बहुत स्ट्रांगली पुट अक्रॉस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसी बेसिस पे अगर खुदा ना खास्ता आपको एक नेगेटिव ऑर्डर मिल जाता है तो उसी बेसिस पे सीआईटी अपील में और ट्रिब्यूनल में आप जाके लड़ सकते हो। सो पहले क्या होता था, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो टैक्स पेयर है वो चाहे तो खुद, अगर वो सक्षम है, if they have capable of doing it, they can prepare their own submission। Otherwise it is very important that you take help from very experienced professionals to draft the correct submission। because अगर आप सबमिशन स्ट्रांग नहीं करोगे, क्योंकि अभी चेहरा तो दिख नहीं रहा है, अभी आपको वो पहले से जानते नहीं है, आप उनको जानते नहीं हो, तो जो चीज है वो सबमिशन ही बोलेगा। तो सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग होना, और उसके लिए राइट प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को हायर करना बहुत जरूरी है। मेरे दिमाग में ये चीज है, पहले सीआईटी पिल के पहले तक कोई भी सबमिशन कर देते थे, सबमिशन की लैंग्वेज ऊपर नीचे होती थी, सही केस लो नहीं डालते थे, सेक्शन नंबर सही नहीं डालते थे, अपने फैक्ट्स ऑफ द केस को सही पुट अक्रॉस नहीं करते थे, और सब कुछ लड़ाई सीआईटी पिल पे होती थी। सीआईटी पिल एक बहुत बड़ा फाइटिंग कॉर्नर बना हुआ था। बट आई थिंक ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड आई थिंक सर विल एग्री टू मी दैट क्वालिटी ऑफ सबमिशन एट initial level at 143 has become so important now for all the taxpayers that you cannot take those things for granted। किसी भी
तरह से कोई भी एक्सपर्ट को यूज करके कुछ भी करना, आई थिंक वो अब एटलीस्ट आई विल नॉट सजेस्ट। सर आपका इस पे क्या? So Alok is correct. You are correct. In my opening remarks, I have already told कि अभी आपको अपने अभी सक्सेस वही होंगे जिनके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ होंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स कर पाएंगे, उनको प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल होनी चाहिए। ये मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था। क्योंकि अभी बाकी जो फैक्ट्स काम करते थे जो ट्रेडिशनल वे में, जो मैंने कहा कि फेस वैल्यू भी कुछ हुआ करती थी हम लोग की, तो वो सब खत्म हो गया है। और अभी बिहेवियर ऑफ द एसएससी और एआरबी उसका भी कोई काउंट नहीं है। अब तो आपके मेरिट का ही काउंटिंग होगा। और ये ठीक कह रहा है लोग कि अगर आप असेसिंग ऑफिसर के स्टेज पर ही, यानी एयू के स्टेज पर ही अगर अपने केस को एक अच्छे एक्सपर्ट से उसको रिप्रेजेंट करावे और अपने फैक्ट्स भी वहां दें। देखिए होता क्या है कि खाली किसी का अपॉइंटमेंट करने से नहीं होगा, एसएससी को खुद भी इन्वॉल्व होना होगा। क्योंकि अब जब आपको कोई नोटिस आएगी तो ये मान कर चलिए कि कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है। अभी डिपार्टमेंट का जो इंटेलिजेंस विंग है वो आने वाले समय में इतना स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है कि आने वाले समय में वो आपको बताएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है टोटल। वो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। ये जो पैन कार्ड के द्वारा जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो पैन कार्ड के द्वारा आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं, सेल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट यूनिट के पास है। तो ये पहले आप ये मान कर चलिए कि अब ये स्क्रूटनी जो जिन लोगों की स्क्रूटनी आएगी वो कोई इंफॉर्मेशन बेस है या आपके रिटर्न में कुछ एरर हो सकती है, या उनको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन है जो जिसके आधार पर टैक्स लायबिलिटी इनकी बढ़ेगी, तो देयर विल बी सीरियस नोटिस। अब कोई उस तरह का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन बेस्ड ही सब काम होगा। और ये डिपार्टमेंट भी ये समझ रहा है, गवर्नमेंट को भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास काफी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे होंगे कि अपने 26 AS, अभी आप प्रॉपर्टी खरीदिए तो 26 AS में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो वो भी आ जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है आपके कैपिटल गेन का भी आएगा, अभी डिविडेंड का भी आ रहा है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इंटेलिजेंस विंग के पास नहीं है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स हम अपने पैन कार्ड से कर रहे हैं। और आप अगर खाली पैन कार्ड, अगर डिपार्टमेंट के पास पैन नंबर है किसी एसएससी का, तो वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं और उनकी रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर वो जो है नोटिस इश्यू होगी। तो ये ठीक है कि अब हमको जो असेसमेंट स्टेज पर ही, यानी इनिशियल जो पहला स्टेज है असेसिंग ऑफिसर का, जो पहले थोड़ा हम लोग कैजुअल ले लेते थे, उसको कैजुअल नहीं लेना है। उसको वहीं पर हम स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिससे कि हमको वहीं पर हमारे साथ जस्टिस होगा। और हो सकता है कि अगर वहां प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो तो अपील का मामला ही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर वो एडिशन कर रहे हैं और वो सही एडिशन है तो वो कोई स्टेज में नहीं छूटेगा। क्योंकि सीआईटी अपील भी हम लोग को मालूम है कि वो भी अभी फेसलेस हो गए हैं और आईटीएटी भी फेसलेस होने जा रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में अगर क्वालिटी असेसमेंट ऑर्डर है, चाहे वो एसएससी के फेवर में है या एसएससी के अगेंस्ट में है, उनसे रिलीफ लेना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। और इसलिए जब हमारे इनिशियल स्टेज में जब हमसे क्वेश्चन किए जाए, जब हमसे कोई एविडेंस मांगा जाए, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए, तो उसको हमको दे देना है। और दे करके अपना जो भी आर्गुमेंट करना है, जो भी ग्राउंड्स लेना है, वो ग्राउंड्स ले करके हमको इनिशियल स्टेज में ही उसको हमको कन्विंस करना चाहिए। Thank you. I appreciate that. So what you're saying is that now e-assessment covers not only your scrutiny assessment, which is 143.3, but it also covers CIT appeal, and in future it will cover tribunal cases also. So income tax department के पास जहां तक power है tribunal तक, because tribunal के ऊपर सीधा high court है, tribunal तक ये तीनों level पे everything is online. tribunal भी अभी online जा रहा है. So sir rightly said that if you are not able to get a positive order at scrutiny level, it becomes very difficult for you to get the positive order at CIT appeal or at tribunal level. With this, I will move ahead. And sir, what are the proceedings which are still not covered under the e-assessment or faceless scheme? आपने ये तो मैंने अभी जस्ट बताया कि सिर्फ अभी
आपके जो असेसमेंट होंगे सर्च से रिलेटेड या असेसमेंट होंगे सर्वे से रिलेटेड, वो अभी आउटसाइड आउटसाइड परव्यू ऑफ फेसलेस है। अदरवाइज अभी 263 264 भी फेसलेस नहीं है, लेकिन अभी नया एक्ट जो नया इनकम टैक्स एक्ट अभी आया है उसमें ऑलरेडी सेक्शन आ गए हैं कि उस पर नोटिफिकेशन इशू करने का पावर ले लिया है बोर्ड ने, और सीबीडीटी का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। वो आपको ये जो पेनल्टी भी फेसलेस होने का प्रपोजल है। उसके बाद में आपका भी वैल्यूएशन का भी ये आपको जो है फेसलेस करने का प्रोविजन है। सेक्शन 142 भी जो उन्होंने दिया है उसमें नोटिफिकेशन का राइट ले लिया है सीबीडीटी ने। फेसलेस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, अभी नोटिस इशू हो रही है जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर से 148 की, बट असेसमेंट तो फेसलेस ही होंगे। और लेकिन इसमें भी सेक्शन 151 इन्होंने अभी नया दिया जिसमें कि उन्होंने पावर लिया है कि सीबीडीटी जो है कभी भी इस पर एक डिटेल नोटिफिकेशन इशू करेंगी। साथ ही इन्होंने रेक्टिफिकेशन, फेसलेस रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट्स एंड इश्यूएंस ऑफ नोटिस और इंटीमेशन, यानी ये रेक्टिफिकेशन राइट्स जो अभी जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास है वो भी फेसलेस हो जाएगा। उसके लिए सेक्शन 157A में उन्होंने पावर ले लिया, उसमें भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 ईयर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लीटली फेसलेस हो जाएगा। हो सकता है कि सर्च एंड सीजर के केसेज और सर्वे के केसेज भी आने वाले दिनों में वो फेसलेस हो जाए। हमें बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं एंड आई प्रॉमिस दैट एवरी मंथ वी विल डू 1 or 2 वेबिनार्स। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेसलेस अपील पे आप कुछ बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 148 पे बताओ, बट देयर आर कपल ऑफ क्वेरीज व्हिच आई हैव, देन आई विल ओपन द हाउस फॉर Q&A। सो अभी हम लोग, और क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन कैसे प्रोसीजर होगा वो सर ने ऑलरेडी कर दिया। व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो भी हमने कर लिया है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन में सर, डू यू वांट टू से समथिंग, और अदरवाइज वी हैव एनीवे कवर्ड ऑन द लार्जर थिंग? व्हाट इज योर व्यू? डू यू वांट टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन? प्रोसीड्योर, या the mode of communication तो I have already discussed। yes, so we have already discussed, yeah, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन होंगे सारे के सारे। ये आपको रजिस्टर्ड ईमेल पर आपके मिलेंगे, आपको नोटिसेज कम्युनिकेशन, और आपके रजिस्टर्ड पोर्टल पे ही मिलेंगे, और उसका अलर्ट होगा आपको ये मोबाइल के द्वारा। और जो प्रोसीडिंग की जो बात कर रहे हैं वो तो इंटर यूनिट जो कम्युनिकेशन होगा वो सारा भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा। एयू को नहीं पता है कि उनका VU कहाँ पर है, यानी उनका उस केस का वेरिफिकेशन यूनिट किसको असाइन किया गया है। एयू को ये भी नहीं पता है कि टेक्निकल यूनिट जो है उनका कौन अपॉइंटेड हुआ है या किसको असाइन हुआ है। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली NFSC के थ्रू सारा कम्युनिकेशन होगा। सेंट्रलाइज जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो NFC रहेंगे। Okay. Sir, you please tell me in terms of एक query आ रही है कि is personal hearing will be allowed in faceless assessment? Is there a exception to it? Will it be allowed? Yes. There is a provision। वो provision है कि आप पर्सनल हियरिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल हियरिंग का आप रिक्वेस्ट करेंगे NFSC को। NFC क्या करेंगे कि उसको रीजनल फेसलेस सेंटर को भेजेंगे, जहां प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ये डिसाइड करेंगे कि इनको पर्सनल हियरिंग देनी है या नहीं देनी है। अगर वो एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही वो पर्सनल हियरिंग होगी, और वहां पर आप असेसिंग ऑफिसर यानी टैक्स ऑफिसर का फेस नहीं देख पाएंगे, रादर आपका फेस वो देख पाएगा और आपको वो आपके साइकोलॉजी को वो रीड कर सकता है। तो ये जो आपका जो ये पर्सनल हियरिंग ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट में अभी एक केस रीट फाइल हुई है, और उसमें ऐसा लग रहा है कि चूंकि पर्सनल हियरिंग एक हम लोग का बर्थ राइट है और ये मिलना चाहिए हम लोगों को, और वो शायद वहाँ सक्सेस हो जाए, हम लोग जीत सकते हैं। और ये लेकिन फिलहाल क्योंकि उसमें डिस्प्यूट इतना ही है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि पर्सनल हियरिंग का, क्योंकि उन्होंने दिया है कि इसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर क्या देखेंगे, जब हमको पर्सनल हियरिंग आई हैव डिमांडेड और ये मेरा लीगल राइट है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। उसमें फिर ये नहीं कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले। तो इस पर देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का क्या डिसीजन होता है, इसीलिए शायद डिपार्टमेंट भी अभी कोई फर्दर इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद शायद इस पर ये डिसीजन आ जाएगा।
और अभी फिलहाल जो जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर डिसाइड करते हैं कि पर्सनल हियरिंग की जो रिक्वेस्ट है उसको मानी जाए या नहीं मानी। Okay, okay. Thank you, sir. The next question which we have is that what are the amendments which have been brought in under Income Tax 1961 for faceless proceedings? देखिए, एक तो ये 144 बी कैपिटल बी, ये अभी इन्होंने 1/4/2021 से इन्होंने कोडिफाई कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट में। ये बहुत लंबा सेक्शन है। एक्चुअली हमारी जो स्कीम थी, जो स्कीम सितंबर 2020 में जो नोटिफाई की थी सीबीडीटी ने, उसी स्कीम को इन्होंने 144 बी के विद सम अमेंडमेंट्स के साथ इन्होंने ले आए। साथ में फेसलेस के साथ में इन्होंने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि 142 बी एक सेक्शन लेके आए हैं। 151A 142B में उन्होंने नोटिफिकेशन करने का पावर लिया है इन कनेक्शन विद वैल्यूएशन, इन कनेक्शन विद स्पेशल ऑडिट। तो ये इन्होंने पावर लिया है। सेक्शन 151A जो फैसले ये आपको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के संबंध में नोटिफिकेशन करने के लिए पावर लिया इन्होंने, और 157A जो है वो फेसलेस रेक्टिफिकेशन करने के लिए इन्होंने पावर लिया। अर्थ ये है कि अब कभी भी डिटेल्ड ये आपको नोटिफिकेशन सीबीडीटी से इन इश्यू पर आ सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के ऊपर, एस्केपमेंट ऑफ असेसमेंट के ऊपर, या फिर वैल्यूएशन के ऊपर, या स्पेशल ऑडिट के ऊपर। साथ ही 263 264 इसको भी फेसलेस करने के लिए इन्होंने सेक्शन 264A ये ले आए हैं। तो उससे 263 और 264 को भी ये फेसलेस करने का प्रपोजल है, और बहुत जल्द हमको लग रहा है कि विद इन 1 ईयर ये नोटिफिकेशन सारी आ जाएंगी। Okay, thank you, sir. Now I will pick up some of the questions which have been shared by our participants. The first thing which I want to share is Mr. Dipanshu Agarwal has asked in terms of some 148 notices are being issued by local AOs, he's saying. So is everything still faceless? So उनको लगता है 148 की कुछ नोटिसेस मिली है लोकल AO से, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर फेसलेस क्या, सब कुछ फेसलेस कैसे है या क्या है? नहीं, इसमें मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि 148 की सिर्फ नोटिस इश्यू करने का ही एम्पावर्ड है जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर, और वो भी तब तक जब तक कि ये डिटेल्ड हमारी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएगी विद इन 3-4 मंथ्स में। अभी जो प्रोविजंस है वो है कि 148 की नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन, इफ द assessing officer is in possession of some information that there is a evasion of tax, there is a escapement of assessment, then वो इशू कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ इशू करेंगे, इशू करने के बाद बाकी की सारी प्रोसीडिंग फेसलेस होगी, यानी असेसमेंट उनका फेसलेस ही होगा। ओके ओके सर, वन मोर क्वेरी व्हिच वी हैव, इसमें 148 हुए हैं और अभी फेसलेस में हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट क्वेरी, द नेक्स्ट क्वेरी व्हिच वी हैव इज वेदर टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 153 शैल बी एप्लीकेबल फॉर फेसलेस आल्सो। जो 153 में जो टाइम लिमिट दी हुई है, विल दैट बी एप्लीकेबल फॉर फेसलेस? डेफिनेटली। अब तो असेसमेंट ही सारे जब फेसलेस है, तो ये जो अभी दिसंबर अभी इन्होंने जो घटा दिया है, और ये जो भी 153 में टाइम लिमिट है वो सारे फेसलेस पर लागू होंगे। ओके, so Mr. Anil Mukim ji, he is my uncle, I know him for decades. He has some query. He's saying that high value transactions not considered in original return of SSE now detected by department and revised return period is expired. How the SSE shall take proper step to avoid penalty? मुकिम जी को मेरा नमस्कार। मुकिम जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा मुकिम जी कि उसमें हमको डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी चाहिए विद गिविंग दिस फैक्ट्स, क्योंकि ऐसा केस में डील किया, एक सर्वे हो गया था, सर्वे में सर्वे हुआ और डिटेक्ट हुए कि कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स वो नहीं लिए, तो हमने डिपार्टमेंट को उस टाइम पे एक रिक्वेस्ट लेटर दिया कि आप 148 की नोटिस इश्यू करो, क्योंकि हमारा ये टैक्स, ये ट्रांजेक्शन पर टैक्स देना छूट गया। और वो 148 इश्यू करवाने के बाद में हमने वो असेसमेंट कंप्लीट करवाया। लेकिन वो जब रिक्वेस्ट हम जब कर रहे हैं तो वहां हमने फिर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लिया 273A में जाकर के चीफ कमिश्नर से, क्योंकि वो हमने ये ग्राउंड लिया कि साहब, क्योंकि सर्वे में तो ये कोई नोटिस डिटेक्शन की नोटिस तो आई नहीं थी उनको, सिर्फ सर्वे हुआ था।
तो जब डिटेक्शन की नोटिस आई नहीं तो प्रायर डिटेक्शन ऑफ द नोटिस बाय द डिपार्टमेंट हमने रिक्वेस्ट कर दिया असेसिंग ऑफिसर को कि साहब मेरा ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं आया और उसका इतना टैक्स होता है, ये टैक्स मैं जमा भी कर दिया, मैंने जमा कर दिया, हम इसको रिगुलाइज करने के लिए आप 148 की नोटिस इश्यू करिए और हमारा असेसमेंट कंप्लीट कीजिए। Mr. Robin Basak is asking one question is if there is an issue which is addressed in the compliance portal by IT department, but SSE neither submitted a response nor disclosed the same in the SSE's return. Does this lead to e-assessment scrutiny? देखिए, अगर वो उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया वहां पर और वो करेक्ट है, अगर वो वहां पर छूट गया है ट्रांजेक्शन उस पर टैक्स देना, तो डिपार्टमेंट उस पर 148 करके ही टैक्स ले सकता है, तो वो 148 कर सकते हैं उसके ऊपर। एक और उनके पास है, अगर मान लीजिए छोटे केस अगर उनका लगता है कि एपरेंट एरर है, मान लीजिए एपरेंट एरर अगर कुछ है, एपरेंट मिस्टेक का अगर मामला अगर उसको बनाया जाए तो फिर वो 154 का भी मामला बन सकता है। Okay, thank you, sir. Kausal wants to know a little bit more in terms of high value transaction notices by department. High value transaction notices पे department क्या notice देता है और how should we safeguard us from those notices? देखिए, एक तो हम लोग को अब एसएससी को ये बहुत ही साफ शब्दों में बता देना होगा कि वो भी जो भी ट्रांजेक्शन करे वो अपने रिटर्न में दिखावे। और अब वो जमाना चला गया है कि भाई ठीक है, डिपार्टमेंट जब पूछेगा या डिपार्टमेंट जब उसको नोटिस करेगा तो हम उस टाइम टैक्स दे देंगे, क्योंकि उसमें बहुत हेवी आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट और ये काफी लग जाएंगे और वो कॉस्ट काफी हेवी हो जाएगा। अब चांसेज ऑफ नोटिस बहुत ज्यादा इसलिए है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है डिपार्टमेंट की बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। उनके पास सारे ट्रांजेक्शन जो आप पैन कार्ड से कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन उनके पास आ रहे हैं और वो उस ट्रांजेक्शन के आधार पर ही आपकी रिटर्न को कंपेयर करके और वो आपको नोटिस इश्यू करेंगे। और वो भी सारा का सारा टेक्नोलॉजी ड्राइव है, तो टेक्नोलॉजी ड्राइव में कोई छूटने का चांसेस कम है। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि एसएससी को सबसे पहले ये बोला जाए कि रिटर्न भरते समय सारे ट्रांजेक्शन को दिखावें। और अब अगर नोटिस आ गई है और उन्होंने नहीं दिखाया है तो वहां एक्सेप्ट करके वहां टैक्स दे। और अगर वो टाइम भी बीत गया उनका अगर रिवाइज रिटर्न करने का तो फिर 148 के लिए रिक्वेस्ट करे डिपार्टमेंट। Okay, so I think we are close with most of the queries. With one last query and then I will sum up. And if anyone has any more queries, they can write to me on alokpatni@taxmantra.com. I have already shared my email ID in the chat box, and we will come back. We will come back with the answer. So to summarize this webinar, what we have learned today is that the department is very aggressively pushing towards technology, pushing towards e-assessment. E-assessment is already started till CIT appeals. अभी ट्रिब्यूनल में अभी स्टार्ट होने वाला है. So from normal assessment to tribunal. I want to intervene. This is faceless. E-proceeding name, they have changed the e-proceeding. They now the name is faceless. Faceless. Yeah. So वो हो रहा है. So as an SSE, what is very important for us is that we should be careful in terms of how we file return, disclose proper details, and also we should be very proactive in terms of what email ID and mobile number which is being used on the department system, so that we get the notices and there is no ex parte assessment which is happening. We should be aware of this. That is one part. The second part is that we have to ensure that the first submission which we make becomes very critical and we hire the right expert to do that. The third point is in terms of we have to be more transparent in terms of what information and data we are disclosing to the department. ये तीन चार चीजें बहुत critical है, and I think with this we will end this webinar, and I want Mr. R.K. Patnia to give a thanks note and to summarize and thanks for taking his time out today. As I said that we will come back with more webinars, and we are starting this series of Ask Expert, wherein we will focus and we will do more webinar. At least one webinar in a month is something which I promise to you. But with this, I request Mr. R.K. Patnia to speak few words with regard to today's webinar, and then we can close. Okay, Alok.
today it is a wonderful experience for me. मैंने पहले ब्रांच लेवल पर आईसीआई के ब्रांच लेवल पर कई बार स्पीकर के रूप में फिजिकली जा करके पार्टिसिपेट किया है और डिटवा में भी मैंने किया है। बट ये जो टेक्नोलॉजी ड्राइव जो है ये सारा कंट्रीब्यूशन तुमको जाता है। तुमने ही हमको इंस्पायर किया कि साहब आप ये इसको ले सकते हैं और इसमें तुमने जो भी हमको सपोर्ट किया उसके लिए आपको भी थैंक्स। लेकिन जो लोग आज पार्टिसिपेट किए हमारे ये इस प्रोग्राम को, उनको विशेष धन्यवाद कि आपने ये यहाँ पर आए और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमारी बातों को सुने, हमारी बातों जो हमने आपसे शेयर की। अब इसमें अगर कोई और इशू, अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर किसी की क्वेरी होगी तो आप आलोक को लिख देंगे तो आलोक के द्वारा मैं आपका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Thanks everyone for joining in today. And this video will also be uploaded on YouTube shortly, so you can go to our channel, Tax Mantra Global channel, and see this video. As I said, we will come back with more videos, more webinar. And thanks to Tax Mantra team, thanks to the complete team, they have worked hard for this webinar. And without them, this webinar was not possible. Thanks again to sir, and also to all the participants who have taken time out and joined. Thanks again. Bye till the time we come back with another webinar. Thank you. Thank you.